ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Namaskar students, I am Devang sir brings you a lecture for economics for chapter number 4 banking and monetary policy. This chapter we have divided into two parts, banking and monetary policy. We have already completed a portion of banking by different questions like evaluation of bank and banking system, meaning of bank and its classification, meaning and functions of commercial bank, meaning and functions of central bank means RBI. Today I am going to teach you meaning and instruments of monetary policy, because only one question are left in this question. So today we are going to complete it. So be prepared and give your personal attention. Okay, now we had start. Okay students, here is the question is explain the monetary policy and its instruments. हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स. सो ध्यान रखना, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो जो कंट्री की एपेक्स बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है, वो प्रिपेयर करती है. बराबर. इट इज़ ओनली फॉर आवर नॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? Monetary policy is the policy which regulates the demand of money and supply of money in the economy. Monetary policy is the policy which regulates the demand for money and supply of money in the economy. Okay? It is essential to regulate these as an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation or deflation, can impact the value of Indian currency and destabilize the economy. Monetary policy का main object ही है यही है, to maintain the balance between demand and supply of money. As a result, control over inflation and deflation so that stabilize the economy and cannot be affected the value of Indian currency against the other foreign currency. यानी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो ये बनाई जाती है to control over demand and supply of money and to restrict the inflation and deflation situation. Okay? In earlier times, the purpose of monetary policy in India was more to regulate the volume of money and nature of money. In the present time, the monetary policy is used for credit creation. Clear? Monetary policy is used for more for credit creation. यानी पहले इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बराबर वॉल्यूम ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए और नेचर ऑफ मनी को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती थी. आज क्रेडिट क्रिएशन के लिए बनाई जाती है. ओके. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, नंबर 1, monetary policy constitutes the conscious steps undertaken by the monetary authority which bring
about changes in the stock of money, source or generation of money, and cost of money. Here we are showing that from the viewpoint of economic theory, what is monetary policy? Monetary policy constitutes the conscious step undertaken by the monetary authority which bring about changes in the stock of money or source or generation of money and cost of money. ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक स्टेप होता है जिसमें मॉनेटरी अथॉरिटी ऐसे स्टेप लेती है जिससे स्टॉक ऑफ मनी में थोड़ा चेंजेस आए, बराबर, और कॉस्ट ऑफ मनी और सोर्स ऑफ मनी भी अच्छी तरीके से बराबर कॉन्शियसली कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, बराबर। सेकेंड पॉइंट है उसमें, द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक for regulating the supply of money in order to maintain economic stability, keeping into consideration the process of economic development and interest of the public is called monetary policy. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के ये जो दो पॉइंट है उसमें दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत इजी है लर्न करने के लिए, बराबर। द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी in order to maintain economic stability, keeping into consideration the process of economic development and interest of the public is called monetary policy. Okay, so here we completed the concept or meaning of monetary policy. Okay, move ahead now. अब आपकी स्क्रीन पे एक डिटेल दिख रही है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. Instruments of monetary policy, there are two types of measures or instrument for monetary policy: quantitative measures and qualitative measures, or quantitative instrument, qualitative instrument, we can say that. First of all, quantitative measures. Quantitative measures are the general measures. इसमें 7 points आएंगे. The 7 points are there: bank rate, first point; second point, repo rate and reverse repo rate; third point, stabilization under emergency situation; fourth point, cash reserve ratio, उसका short form CRR; fifth point, statutory liquidity ratio, short form SLR; sixth point, open market operation OMO; and seventh point, sterilization of foreign exchange. Okay, so here is the quantitative measures. And qualitative measures or qualitative instruments: first point, security requirement; second, margin requirement; third, ceiling on credit; and fourth one, discriminatory interest rate. So these all are the instruments or measures of monetary policy. Okay, स्क्रीन पे आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है क्वांटिटेटिव मीजर्स और जनरल मीजर्स. मीजर्स या इंस्ट्रूमेंट कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, ध्यान रखना, बराबर. तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव मीजर्स में फर्स्ट पॉइंट आता है बैंक रेट. बैंक रेट के नज़दीक आप देखोगे तो इनटू ब्रैकेट शॉर्ट नोट लिखा है, तो हियर इज द शॉर्ट नोट ऑफ बैंक रेट. फर्स्ट मीनिंग आएगा व्हाट इज बैंक रेट. व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स, they borrow from the RBI. The rate at which RBI lends to the commercial banks for longer period is called the bank rate. Simple है. जब भी कोई commercial bank in shortage of fund, they like to borrow from RBI for longer period of time. ये ध्यान रखना है. longer period of time के लिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से बोरो करती है तो उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट क्रिएट होता है तो वो इंटरेस्ट रेट बैंक रेट है. ध्यान रखना, बैंक रेट इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट, बराबर, ध्यान रखना. ओके, इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड, कॉमर्शियल बैंक्स विल बोरो लेस एज इट इज एक्सपेंसिव टू बोरो. When they borrow lesser amount and at higher rate, they give lesser amount of loans and at higher rate to the general
public. And when people get fewer loans, their demand for certain goods and services falls. So here, if goods and demand of goods and services going to be fall, then we can say the inflation situation being under control. यानी बैंक रेट इंक्रीज होता है तो कॉमर्शियल बैंक जो बोरो करती है वो लेस बोरो करती है और वो भी एक्सपेंसिव रेट पे करती है. दैट्स वाई एक्सपेंसिव बोरो होता है उनका. लेजर अमाउंट बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक, तो लेजर अमाउंट बोरो होता है तो वो जनरल पब्लिक को भी बहुत कम लोन प्रोवाइड कर सकती है. ऊपर से जनरल पब्लिक को वो रेट भी हाई लगेगा तो वो लोग भी क्या करेंगे, कम लोन लेंगे. बराबर. और कम लोन लेंगे तो उनके पास जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी कम आएगा. दैट्स वाई उनकी डिमांड कैसी हो जाएगी, गुड सर्विसेज की कम हो जाएगी. तो वो एक तरीका हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन सिचुएशन विल गोइंग टू अंडर कंट्रोल. ठीक है. ऑन द होल there is lesser creation of money, lower demand for goods and lower circulation of money in the economy. When the economy is under grip of inflation, bank rate is increased to control it. When the economy is under grip of inflation, bank rate is increased to control it. Clear? ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी इकोनॉमी इन्फ्लेशन होता है तो उस वक्त बैंक रेट बराबर इंक्रीज़ किया जाता है. हमने ऊपर पहले भी पढ़ ही लिया. बराबर. मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि डिमांड ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज गोइंग टू बी फॉल. तो हियर इज़ द सिचुएशन बीइंग कॉल्ड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है. When supply of money is higher than demand for money, there is inflation. And hence reducing money supply helps in reducing inflation. And if supply of money is lower than the demand of money, there is depression. ये तो हमको पता है कि भाई सप्लाई ऑफ मनी वो डिमांड ऑफ मनी से ज़्यादा है तो वो इन्फ्लेशन है. और उससे आप थोड़ा रिवर्स सोचो. बराबर. कि सप्लाई ऑफ मनी वो डिमांड ऑफ मनी से कम है तो वो डिप्रेशन है. तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो बैंक रेट इंक्रीज होता है और डिप्रेशन होता है तो बैंक रेट वो डिक्रीज होता है. बराबर. ये इसका रीज़न है. और ये रीज़न इन द सेंस इस तरीके से क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट इंप्लीमेंट होता है टू कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन. बराबर. इन्फ्लेशन में बैंक रेट इंक्रीज होता है और डिप्रेशन में बराबर वो डिक्रीज होता है. सो द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी. यानी बैंक रेट आप लो रखते हो तो वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी है और बैंक रेट हाई रखते हो तो वो डियर मनी पॉलिसी या डियर मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है. यानी ये आपको ध्यान रखना है. बराबर. यानी बैंक रेट लो रहता है तो वो डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन में चीप मनी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है और जो इन्फ्लेशन होता है तो उसमें डियर मनी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है बैंक रेट को प्लस माइनस करके. बराबर. तो ये बैंक रेट की पूरी थियरी समझ में आनी चाहिए कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है. बराबर. तो ये हमको ध्यान रखना है. अब बैंक रेट की एक डिटेल हमको दिखाई दे रही है. एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ का एक टेबल है. ईयर और बैंक रेट इन परसेंटेज दिया हुआ है. सोर्स आरबीआई की वेबसाइट है www.rbi.org. टोटल नंबर ऑफ 4 ईयर्स दिए हुए हैं 1953, 1981, 1991 एंड 2016. आप लर्न कर सकते हो 3.5, 10, 12, 7.
ये परसेंटेज है 3.5, 10, 12, 7, ये अलग अलग ईयर्स हैं। उसमें बैंक रेट इस तरीके से देखने को मिला, वो हमको आरबीआई की वेबसाइट पर से मालूम यानी जानकारी हमको मिल रही है, बराबर। ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड अ शॉर्ट नोट ऑफ बैंक रेट। नाउ पॉइंट नंबर 2, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। When commercial bank need funds for very short period, means sometimes for 1 day, 7 day or 15 days, etc. They sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at a particular rate. Here is the rate being called repo rate. याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करती है, तो उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो बैंक रेट होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से, तो शॉर्ट टर्म में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट होता है। तो वो 1 डे, 7 डे, 15 डेज का एक टाइम बिंग पीरियड होता है, तो वो एक रेपो रेट के लिए डिटेल आती है, तो हमको ध्यान रखना है। आई अगेन रिपीट, व्हेन कॉमर्शियल बैंक नीड फंड्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, means sometimes for 1 day, 7 day, 15 days, etc. they sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at a particular rate. Okay, the rate is called the repo rate. The word repo is used for them repurchase rate, यानी repurchase rate जो होता है उसका शॉर्ट बना दिया repo rate. Banks sell government securities to RBI in order to raise money for a very short term with a condition to repurchase them at some discount. Such a discounting rate is repurchasing rate or repo rate. Such a discounting rate being called a repo rate or repurchase rate. बराबर, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से बोरो करती है, बराबर, उस पर जो कंडीशन होती है, उसमें जो भी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को, और आरबीआई उस पर जो डिस्काउंटिंग रेट लगाती है वो होता है रीपरचेज रेट, जिसको रेपो रेट बोला जाता है। ओके, इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन और इन द टाइम पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक इंक्रीज रेपो रेट as these act as a disincentive for bank to borrow from the central bank. समझना, सेम डिटेल आ रही है। आगे हमने जो पढ़ा था बैंक रेट में कि इन्फ्लेशन होता है, बराबर, तो जो रेट होता है, बराबर, वो इंक्रीज किया जाता है, बराबर, ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे भी इस तरीके का ही है कि भाई इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक जो होती है वो रेपो रेट इंक्रीज करती है, जिससे जो भी कॉमर्शियल बैंक होती है वो जो बोरो करती है उसमें उनको डिसइंसेंटिव होता है, यानी वो कम बोरो करती है ओनली बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब्सिक्वेंटली दे लैंड to the general public at a higher rate and ultimately people borrow less and thus money supply and inflation are arrested. बराबर, और इस तरीके से जो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन है, बराबर, वो अरेस्टेड इन द सेंस इज गोइंग टू अंडर कंट्रोल। बराबर, समझ में आना चाहिए। इन्फ्लेशन में रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है ड्यू टू कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, बराबर। An increase in reverse repo rate means that commercial banks will get more incentives to park their funds with the RBI by lending more to RBI, thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa. Increase in reverse repo rate means that commercial bank will get more incentive to park their funds with the RBI. समझिए, रिवर्स रेपो रेट की बात आ रही है अब। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स सोचना है आपको कि कॉमर्शियल बैंक जो होती है वो
आरबीआई को मनी लैंड करती है, दैट मीन्स आरबीआई कॉमर्शियल बैंक जो होती है उसके पास से मनी बोरो करती है, आरबीआई बोरो करती है, तो उस वक्त जो, और वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट इंप्लीमेंट होता है वो रेपो रेट ही है, लेकिन ये रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट मीन्स व्हाट? जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास से बोरो करती है मनी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और उस वक्त जो एक डिस्काउंटिंग रेट इंप्लीमेंट होता है, बराबर, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो अब आप समझिए, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो कॉमर्शियल बैंक को एक इंसेंटिव रहता है कि भी उनके जो भी फंड्स है वो आरबीआई के पास रहे, ओनली बिकॉज ऑफ हायर रेट, बराबर। और आरबीआई thereby decreasing the lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa। उससे उल्टा आप सोचोगे तो वो उस तरीके से होगा। यानी रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या है, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट मीन्स the agreed upon rate at which the RBI repurchase its securities from the commercial bank in the event when the RBI has to borrow short-term funds from the commercial bank। I already taught you, बराबर। आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बोरो करना है कॉमर्शियल बैंक के पास से तो वो कर सकती है, और उस पर जो एक रेट लगता है इंटरेस्ट रेट वो होता है रिवर्स रेपो रेट, बराबर। तो इंक्रीज होता है तो कॉमर्शियल बैंक को एक इंसेंटिव मिलता है कि अपने फंड्स जो भी है वो आरबीआई के पास रखे, जिसकी वजह से उनका भी क्या हो कि भाई जो फंड्स होते हैं उसकी वैल्यू बढ़े, उनके पास अच्छे इन्फ्लेशन के पीरियड में जो भी मनी होता है वो सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाए, कम हो जाए, और उससे वाइस वर्सा यानी उससे उल्टा वो बराबर डिप्रेशन के पीरियड में भी ऐसा कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का पूरा डिटेल दिया हुआ है, बराबर। और जो भी डिटेल आ रही है, बराबर, वो आपको समझ में आनी चाहिए। रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ये दोनों इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म में ही होते हैं, बराबर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो होता है आइदर कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई, बराबर। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे कॉर्नर में दिख रहा है एक वैल्यू का टेबल, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की वैल्यूज दी गई है। सोर्स आरबीआई की वेबसाइट है www.rbi.org। ईयर हेडिंग दिया हुआ है, रेपो रेट इन परसेंटेज एंड रिवर्स रेपो रेट इन परसेंटेज। जनवरी 2006, मार्च 2010, अप्रैल 2016, ये ईयर्स दिए हुए हैं मंथ के साथ। रेपो रेट में, बराबर, मैं वर्टिकली बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, 6.50, 5.0, 6.5, एंड रिवर्स रेपो रेट में लिखा हुआ है, बराबर, 5.50, 3.50 एंड 6 बराबर 0। तो ये हमको शायद कोई पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो याद रखना है। सो हियर वी कंप्लीटेड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बोर्ड में 2 मार्क्स में आया हुआ है व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो दोनों का मीनिंग लिखना है, बराबर। प्लस अगर आपको कोई अलग तरीके से पूछते हैं शॉर्ट नोट में, जैसे बैंक रेट भी एक शॉर्ट नोट है, तो हियर इज द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो बीइंग अ शॉर्ट नोट, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। There is a special window for banks to borrow from RBI against approved government securities in an emergency situation like an acute cash shortage। यानी कोई बैंक में कैश शॉर्टेज हो जाती है तो आरबीआई इमरजेंसी में उनको उनका जो बोरोइंग होता है उसको प्रोवाइड करती है। यानी कॉमर्शियल बैंक का बोरोइंग बोला जाता है, आरबीआई का लैंडिंग बोला जाता है, बराबर। और वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, बराबर, उसकी अगेंस्ट में आरबीआई क्या करती है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में कॉमर्शियल बैंक को, बराबर, कुछ मनी लैंड करती है, बराबर। दिस रेट इज हायर देन रेपो रेट। अभी हमने आगे रेपो रेट पढ़ा है, बराबर।
ये रेट रेपो रेट से ज़्यादा होता है। दीज रेट बीइंग कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, बराबर। दीज रेट बीइंग कॉल्ड एज marginal standing facility in 2016 these rate what was 7%, बराबर। पता चलना चाहिए, अभी हमने आगे पढ़ा हुआ है 2016 में रेपो रेट 6.5% था और 2016 में MSF 7% था, यानी दिस रेट इज हायर देन रेपो रेट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, कैश रिजर्व रेशियो। Under the RBI Act 1934, all commercial banks have to keep certain minimum cash reserves with the RBI. I again repeat, under the RBI Act 1934, all commercial banks have to keep certain minimum cash reserves with the RBI. Initially, CRR was decided to be 5% of demand deposits and 2% of time deposit. यानी इंडिया में इनिशियली यानी इन द ईयर 1951 डिमांड डिपॉजिट के लिए 5% डिसाइड किया गया और टाइम डिपॉजिट के लिए 2% डिसाइड किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने पास जो डिपॉजिट्स आती है वो डिपॉजिट्स में से डायरेक्ट लोन या कुछ लैंडिंग नहीं कर सकती है, बराबर। जब भी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक को मिलती है उसमें से जो डिसाइड किए हुआ है वो परसेंटेज के हिसाब से उनको कुछ डिपॉजिट्स रिजर्व के नाम से, कैश रिजर्व के नाम से आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो वो जो रेशियो होता है वो होता है कैश रिजर्व रेशियो, बराबर। ये ध्यान रखना। इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ट बाय आरबीआई। सिंस 1962 CRR is variable between 3 to 15% of the total deposits of individual bank. 1962 से इंडिया में CRR 3% से 15% तक, बराबर, इन बिटवीन 3% to 15% डिसाइड होता है। और कौन से वॉल्यूम पे? तो टोटल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक, यानी इंडिविजुअल बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है उस पर आरबीआई 3 to 15% का CRR जो भी डिसाइड करती है वो हिसाब से मेंटेन किया जाता है। ओके, CRR fulfills the need of a comfortable amount of cash reserves with the banking system. In case many customers start withdrawing their deposits and bank have to provide cash against deposits. यानी कभी क्या होता है कि भाई कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई नीड आ गई है जल्दी इमरजेंसी में, तो वो डिपॉजिट करने की बजाय अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसे हैं उसको विड्रॉ करने लगते हैं, और विड्रॉ बढ़ जाता है तब वो विड्रॉइंग के लिए टू प्रोवाइड कैश अगेंस्ट दैट डिपॉजिट्स, बराबर। उस वक्त ये जो रिजर्व रखा हुआ है आरबीआई के पास कोई भी बैंक का वो काम लगता है। यानी बैंक के लिए ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग, बराबर। जो भी डिपॉजिट्स हम देते हैं वो और जो भी हम डिमांड करते हैं लोन के लिए वो मेंटेन करना पड़ता है। और मेंटेन करने के लिए ये CRR बहुत काम में लगता है कि जब अगर कोई विड्रॉइंग बढ़ जाता है कोई बैंक का तब ये CRR काम लगता है, ठीक है। बिसाइड्स this is also used as an instrument to control inflation. When CRR is higher, commercial banks have lesser deposit money to create credit. यानी CRR इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी यूज़ होता है। यानी इन्फ्लेशन में CRR हाई रहता है, CRR बढ़ता है तो जितनी भी डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक के पास आती है उसमें से उनको ज़्यादा डिपॉजिट्स एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। तो ज़्यादा डिपॉजिट रिजर्व रखनी पड़ती है तो उससे जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, और क्रेडिट क्रिएशन कम होता है तो उससे क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी जो होता है
वो भी मार्केट में कम हो जाता है। मार्केट में कम हो जाता है तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से CRR वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। Thus, they give fewer loan to people and hence money supply and inflation are curtailed, यानी under control. CRR is reduced in time of deflation or depression. बराबर, इन्फ्लेशन में इंक्रीज होता है और डिप्रेशन या डिफ्लेशन के पीरियड में डिक्रीज होता है। सो CRR की डिटेल आ गई। ये एज पर RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली मेंटेन होता है। बराबर, सिंस 1962 से बिटवीन 3 to 15% ये मेंटेन हो रहा है। बराबर, तो ये सब हमको ध्यान देना है। बराबर, तो ये तरीके से अगर हमको MCQs भी पूछ लेते हैं तो हमको ध्यान देना है। बराबर, तो हियर आई एम कंप्लीटेड 4th नंबर पॉइंट, कैश रिजर्व रेशियो। पॉइंट नंबर 5, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसका शॉर्ट फॉर्म है SLR। अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of their total deposits, means demand and time deposit both, in the form of cash, gold and unencumbered approved security। unencumbered यानी वो जो आप जिसको आप अनचेंज कहते हो वो अनएंक्यूम्बर्ड बोला जाता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। यानी पॉइंट हमको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, CRR मेंटेन करने के बाद जो टोटल डिपॉजिट रहती है उसमें से टोटल 25% के हिसाब से आपको बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश आपको रखनी है। तो वो जो 25% की बात हो रही है वही SLR है। बराबर, ये आपकी समझ में आना चाहिए। A higher SLR diverts bank fund from loan and advances to approve government securities and helps to meet government expenditure, and on the other hand it reduces the capacity of banks to create loan and raise money supply by credit creation. If SLR increases is higher, people get lesser credit एंड वाइस वर्सा, यानी उससे उल्टा आप समझ सकते हो। बराबर, तो ये बात हुई SLR की। SLR कॉमर्शियल बैंक मेंटेन करेगी। बराबर, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से मेंटेन करेगी। पहले CRR मेंटेन करना है, CRR इम्प्लीमेंट करना है। बराबर, और उसके बाद SLR मेंटेन करना है। बराबर, तो हियर आई कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 5, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बराबर, नाउ पॉइंट नंबर 6, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to sell of or purchase of government securities or bonds by the RBI in the open market। यानी जो मार्केट होता है कोई भी इकोनॉमी में या कंट्री में, मनी मार्केट, उसमें RBI अपनी सिक्योरिटीज डायरेक्ट और बॉन्ड डायरेक्टली सेल परचेज करने के लिए बराबर देती है, तो वो उसका एक्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड बाय द RBI इन ओपन मार्केट। बराबर, when the RBI purchases government bonds from the market, the supply of money in the economy rises. The supply of money in the economy falls when RBI sells such bond in the open market.
बराबर, समझ में आना चाहिए। आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में से जब परचेस करती है, तब आरबीआई परचेस करती है तो वो बॉन्ड जो भी होते हैं उसके सामने आरबीआई पैसा देती है, तो इसकी वजह से मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। बराबर, और जो सप्लाई ऑफ मनी जो होता है इकोनॉमी में वो फॉल होता है, तो उस वक्त क्या करती है आरबीआई, वो जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, उसको रीपरचेस करती है, यानी जो बेचे थे वो वापस खरीद यानी उसके परचेस कर लेती है। तो इस तरीके से ओपन मार्केट में आरबीआई परचेस सेल ऑफ बॉन्ड की मूवमेंट करती है। ठीक है, सच ऑपरेशंस आर अंडरटेकन टू रेगुलेट द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। ये जो सेलिंग परचेज की बात आ रही है, बराबर, परचेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम मार्केट, द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी राइजेज, वो हमने ऊपर पॉइंट देखा, तो वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। और सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन आरबीआई सेल्स सच बॉन्ड्स इन द मार्केट, यानी आरबीआई जब परचेस करती है तो उस वक्त डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन में उस तरीके से परचेस करके सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाया जाता है, तो डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिप्रेशन में आरबीआई ये ऑपरेशंस ऑपरेट करती है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू 1991, यानी 1991 से ही ये ओपन मार्केट ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके पहले ये यूज नहीं होता था। बराबर। पॉइंट नंबर 7, स्टरीलाइजेशन पॉलिसी। Sterilization of RBI accounts against shocks arising from excessive increase or decrease in amount of foreign exchange। यानी फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, आवर करेंसी, इंडियन करेंसी के सामने जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें कुछ प्लस माइनस होता है, बराबर। तो वो प्लस माइनस जो होता है उसके सामने जो एक पॉलिसी आरबीआई बनाती है उसका नाम है स्टेरिलाइजेशन। बराबर। लेट्स सी, व्हेन देयर इज एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया owing to trade and foreign investment, the RBI indulges in open market sale of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज का पूरा एक अकाउंट बनाया जाता है, बराबर, उसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। अगर एक्सपोर्ट होता है तो उस तरीके से इनकम होती है बैलेंस शीट में फॉरेन करेंसी की और फॉरेन ट्रेड की, फॉरेन एक्सचेंज की। और इंपोर्ट होता है तो वो बराबर यहाँ से फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारी कंट्री में से बाहर जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक बैलेंस शीट बनाया जाता है और बैलेंस शीट में वो मेंटेन किया जाता है, बराबर, जो हमारी करेंसी है वो और जो फॉरेन करेंसी है वो, ये दोनों का एक बैलेंस बनाया जाता है। और वो बैलेंस बनाने के लिए आरबीआई स्टेरिलाइज करती है, वही स्टेरिलाइज यानी स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है, बराबर। इसके हेडिंग में ही पूरा लिख दिया है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, दिस इज sterilizes its balance sheet against external shocks. It buys government bonds if there is excessive outflow of foreign exchange। बराबर। तो पहले ही बता दिया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज जो भी है उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। पीछे चैप्टर नंबर 9 में हम सीखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये नाम से बैलेंस शीट बनती है, बराबर। फॉरेन ट्रेड को मेंटेन करने के लिए आरबीआई एक एक्ट करती है, वही होता है स्टेरिलाइजेशन। तो हियर वी कंप्लीटेड 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर क्वांटिटेटिव मेजर्स, बराबर। ओके, नाउ आपके स्क्रीन पे एक हेडिंग दिखेगा सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। टोटल नंबर ऑफ 4 क्वालिटेटिव मेजर्स पढ़ने में आएंगे, बराबर। उसमें फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। बैंक मस्ट एंश्योर दैट पब्लिक रिटर्न्स द लोन्स गिवन टू देम
hence they lend money against some security deposits from the borrowers. In case the borrower is not able to repay the loan, the bank uses the security to recover its dues. For example, a bank can take jewelry, deposits, car, house, land, etc. as a security deposit. यानी आरबीआई एक मीजर इंप्लीमेंट करने को बोलती है कि जब कॉमर्शियल बैंक को कि जब भी आप कोई लोन प्रोवाइड करते हो तो उसके सामने कुछ एज अ सिक्योरिटी उनके पास है, बराबर, तो वो आप रखो. वो ज्वेलरी हो सकता है, बराबर, कार हो सकती है, हाउस हो सकता है, लैंड हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बराबर. तो ये हमको पता चलना चाहिए. तो हियर इज द पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. Point number 2, margin requirement. Margin requirement. The RBI also sets margin for granting loan against security. An individual is given only a certain percentage as loan of the total value of assets offered as security. Individual loan में जो होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से, बराबर, लोन ऑफर की जाती है. तो ये एक डिटेल आई है, यानी आरबीआई मार्जिन प्रिपेयर करती है लोन प्रोवाइड करने के लिए, बराबर. बैंक्स आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज. जैसा पर्पज वैसा मार्जिन, जैसी रिक्वायरमेंट ऐसा मार्जिन. आरबीआई ये पूरा एक गाइडलाइन कॉमर्शियल बैंक को, बराबर, एज अ मॉनेटरी पॉलिसी प्रोवाइड करती है, बराबर. सो हियर कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 2, मार्जिन रिक्वायरमेंट. पॉइंट नंबर 3, सीलिंग ऑन क्रेडिट. द आरबीआई ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स सीलिंग फॉर क्रेडिट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. क्रेडिट क्रिएशन का काम जो होता है, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट अगर हो जाती है कॉमर्शियल बैंक में, तो उस पर थोड़ा कंट्रोलिंग करने के लिए ये सिलेक्टिव मेजर यूज होता है, सीलिंग ऑन क्रेडिट. द आरबीआई ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स द सीलिंग फॉर क्रेडिट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 4, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट. बराबर, मार्जिन डिफरेंट है तो इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट ही होगा, बराबर. RBI suggests different rates of interest for different type of lendings. This is called the policy of discriminatory interest rate, बराबर. For example, a relatively lower rate of interest is charged from needy farmers than what is charged from rich business persons to buy a car or a house. यानी अलग अलग टाइप की लोन अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड की जाती है, बराबर. यानी मैंने पहले बता दिया, मार्जिन्स आर डिफरेंट, देन इंटरेस्ट रेट्स आल्सो बीइंग आर डिफरेंट, चार्ज्ड बाय आरबीआई. सो हियर पॉइंट नंबर 4 कंप्लीटेड. और हमने कंप्लीट कर दिया क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वालिटेटिव मेजर्स बहुत छोटा है, यानी ये 2 या 3 मार्क्स में डिफरेंट सेपरेटली आ सकता है, ध्यान रखना, बराबर. तो हियर कंप्लीटेड आवर लास्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर, बराबर, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ओके. सो स्टूडेंट्स, जो आंसर कंप्लीट किया उसमें हमने 2 टाइप की डिटेल पढ़ी, बोथ क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, थर्ड पॉइंट स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, फोर्थ पॉइंट कैश रिजर्व रेशियो, फिफ्थ पॉइंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सिक्स्थ पॉइंट ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड सेवेंथ पॉइंट स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एंड इन क्वालिटेटिव मेजर्स वी हैव स्टडीड हियर 4 points: security requirement, margin requirement, ceiling on credit and discriminatory interest rate. Clear? So we have completed fully our chapter number 4. आज के लिए लेक्चर इतना ही रहेगा. होमवर्क में ये पूरा आंसर आपको लिखना है, बराबर. चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं. ओके.
टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।